Good afternoon. Can you hear me, Dr. Pragati? Very good afternoon, sir. Yes, sir. I can very well hear you. Am I visible? Am I visible? Am I visible? Yes, sir. Your Yes, sir, video is visible. all clear. And yes, sir. We can hear you. And Yeah. so both of the speakers are here. Sir, we will wait for 2-3 minutes. Sir, will it be okay to wait for 2-3 minutes? Hello, sir. I think your connection is lost or something. Sir, am I audible to you? Okay. Sir, we are waiting for 2-3 minutes to let the people join. Yeah. And how many speakers apart from me? Sir, apart from you, there is another speaker, Mantosh Kumarji. Dr. Mantosh Kumar is there, who already has joined us. Okay. Yeah. Mantosh Kumar. Good afternoon. Is he able to hear us? Mantosh Kumar? Pragati, there's any problem? Yes, no, from your side, there is no problem, sir. I think the Mantosh Kumar ji, I think got disconnected or some error in his connection. Okay. Mantosh ji, can you hear us? Maybe on phone you can talk to him and see whether. Sure, sir, I will. Begin once. Yeah, that's okay. Yeah. Because one of the speakers, he is not able to hear. So actually from there and from there at least. frequent problems we have. Because other speakers also from Delhi, but he is not able to hear. So I told her to talk to him on phone. And then But see you are there. Back button. Raise your hand. Turn microphone off. So is Mantosh Kumar with us? Has he joined? Pragati? Yes, sir. Yes, sir. Sir, he is there. Oh, very good. Very Yeah. good, very good. Yes. So what are you doing in Delhi state government? Sir, special education teacher. Pardon? Oh, special education teacher, sir. Yeah, where? Delhi government, sir. Kanjuratan Yeah, which, Seva Kutir. Yeah. Ye any- Seva Kutir. Are you in the department or are you in the
any particular school, Department of organization? Education, Delhi Government Department of Education. Yeah, sir. Very good, very good. Yeah. How many years? Sir, Since when? Sir, 1 year before. Okay. Before that? Sir, August 17. ठीक है, तो सर को बोलना कि Hello. सर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे. हेलो, आवाज लगता है मेरे नहीं आ रही है सही से. मेरी आवाज क्लियर पहुंच पा रही है मैम? आपकी मंतोष जी क्लियर आवाज आ रही है. अच्छा, राव अच्छा, सर अच्छा. की तरफ से थोड़ा डिस्कनेक्शन लग रहा है. अच्छा, अच्छा, जी जी जी. Rao sir, can you hear me? We should do some. राव सर से मैं NIPV देहरादून में मेरी पहली मुलाकात हुई थी. उसके बाद सर ने समय समय पर हम लोग को बहुत जो है सपोर्ट किया है. काफी लंबे Yes. समय बाद सर से रूबरू होने का मौका मिल रहा है. बिल्कुल. जी. Rao sir, can you hear us? Can we start? I think because of sir some connection error, sir got disconnected. हम लोग 2 मिनट और वेट करेंगे. Let sir join and then we will start it. Sir is already there. Sir, shall we start? Yeah, we can start. Yeah, okay, sir. So, very welcome to all of you. Today, we are observing the Global Accessibility Awareness Day 2023. On this occasion, our department is observing and celebrating this particular day in a very through various programs with the National Institute, Composite Regional Centers, and different other stakeholders for the subject. So, very welcome to you, sir. Here we are having KVS Rao, sir, as a resource person. And sir was a civil servant and served the government of India more than 34 years in various capacities in the central government and departments of information and broadcasting, health and disability, consumer and human rights sectors. Sir has played a very pivotal role in the development of and drafting of the Rights of Person with Disability Act 2016. And apart from that, there is another project sir has headed, that is a unique disability. कौन-कौन आ रहे हैं? सर का एक और जो है मैं परिचय अपने सारे स्टूडेंट्स और सारे श्रोताओं को देना चाहूंगी. That sir has also played a very key role in the beginning of the establishment of the NIMHR
since its conception. Sir is retired from our department, DEPWD, and sir is doing many awareness and stress management programs. And sir wrote the 5 books, and many of the books are under the publication. So we will get other books from sir also. So sir is a life coach. So lots of instructions are there for sir. So he is here as a resource person. We are very lucky to have you as a resource person. Our director was about to join, sir, but due to some meeting in the department, currently he is not able to. So our deputy registrar, sir, is here with us, Muhammad Ashfaq, sir. Ashfaq, sir, if you want to say, add something. Very good afternoon to all, and it was a nice introduction by Mrs. Pragati Pandeyji, assistant professor of KVS sir, but it was very short. I think entire NIMHR should be very grateful to have today KVS Rao sir, and when we turn back the file, he is the man who have actually conceptualized everything. Finalizing the land, finalizing the approvals, finalizing each and everything of NIMHR. So we can say he is, in one sense, father of NIMHR at the file. So we formally welcome you to this small session on global accessibility awareness day, sir. And I'm very thankful for joining this session, and we are looking for the enlightenment from your side. प्रगति मैडम ने जैसे बताया है कि सर स्पिरिचुअल राइटिंग करते हैं और स्पिरिचुअल गाइडेंस करते हैं, तो हम बता दें सभी हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को कि हम भी इसके जो है लाभान्वित है। सर के यूट्यूब पे वीडियोस है, सर का चैनल है जिसपे हम लाभान्वित होते रहते हैं। तो सर से आज हमारा एक निवेदन ये भी रहेगा कि सर अपने जो स्पिरिचुअल आइडियाज आप शेयर करते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा मार्गदर्शन ग्लोबल अवेयरनेस एक्सेसिबिलिटी के साथ में हमारे छात्रों को करें। So with this, I formally welcome all our speakers and participants in this session, and I request Pragati Pandeyji to continue the session with further. Okay, thank you so much, sir. So with KVS Rao sir, we are having Dr. Mantosh Kumar with us. Mantosh ji actually has done his graduation and post-graduation from the NIPVIT Dehradun. It's a National Institute of Persons with Visual Disability. And Mantosh ji himself is a person with visual impairment, but I really salute his strength, because he has not only completed his post-graduation, he has done his PhD also from Dr. Shakuntala Mishra Rehabilitation University, and currently he is posted as a special educator in the Delhi government. So Mantosh ji, very welcome you. And Rao sir and Mantosh ji knows each other very well. So sir, with this formal introduction, we may kindly start with the webinar so that ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपकी बातों को ज्यादा सुनना है. So I'm going to present, sir. Yeah. Yeah, sir, give me just 1 minute. Yeah, no issue. Sir, I hope the screen and the PPT is visible to you. Yeah. Can you enlarge the PPT? Okay, sir, I will try.
Sir, in my screen, it's a full screen. Okay. Here, So is it readable to you? no issue. No issue. So we'll come to the first slide only. It's an introduction, sir. Yeah. Yeah. This is okay, sir? Yeah, let it be here before I'll say a few words and then we come to the next slide. So- Yeah, you just can say that move, I will move the slide. Yeah. So first of all, good afternoon to all of you, to the participants, and also thank you very much, Dr. Pragati and Deputy Registrar of the NMHR for inviting me for this important webinar. And I congratulate all the Institute for celebrating this Global Awareness, Accessibility Awareness Day in an appropriate manner. And it is very important that we celebrate and we really understand its importance. And once again, I thank you for inviting me for this webinar. And most of the participants are very much aware of the subject. There is nothing much new for me to say about it. But still, this is the day when we have to remind ourselves not only the purpose of the accessibility importance, but also we have to improve our commitment so that we not only be committed on this day alone, but every day should be a commitment of improving accessibility around us. Having said that, let me tell you what will be my content of my presentation. Pragati can move. So in the presentation, I will deal with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, जो ग्लोबल लेवल पे जो कानून है वो जरूरी है जानने के लिए, और उससे क्या अपना ऑब्लिगेशंस है वो पता होना चाहिए. और एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो भी जरूरी है. वो क्या उस पे कमिटमेंट है अपना देश का. या बैक, the slide has moved. Can you go back to the slide, Pragati? Yes, sir. This one? Yeah, slide has moved. Yeah, back, yeah. Then तीसरा हम बताएंगे जो अपना भारत देश में जो कानून है, लेटेस्ट कानून राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, उसमें क्या क्या प्रोविजंस है और अपना क्या क्या पालन करना है. सभी लोग, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो या इंडिविजुअल्स हो, वो उस कानून को जानना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए. तीसरा है सिप्डा, एक स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है, जिससे फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं. उस बारे में बातचीत करेंगे. और नेक्स्ट इज एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान, जो आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कोई नया चीज है तो डिस्कस करेंगे. और एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, अपन एक्सेसिबिलिटी बात करते हैं, लेकिन क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, और क्योंकि उसके बिना मॉनिटरिंग कैसा फीचर्स क्या रखना है, क्या होना चाहिए, वो पता नहीं चलता है. सो गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आखिरी में हम कंक्लूजन से बताएंगे कि इस सब्जेक्ट मैटर पे, ताकि अपना जो ओपिनियन है एक्सेसिबिलिटी पे ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके. नेक्स्ट स्लाइड. प्रगति आया. सो जो हम बता रहे थे, जो ग्लोबल कानून, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये एक ग्लोबल लेवल पे कानून है जो इंडिया रेटिफाई किया है कन्वेंशन को 2007 में. मतलब इससे एक साइन करने से कमिटमेंट हुआ है कि जो इसमें कन्वेंशन में लिखा हुआ है वो पूरी तरह पालन करेंगे. इसमें 8 प्रिंसिपल्स दिया है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है सभी को जानने के लिए, ताकि इससे
पता चलेगा कि अपना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज है। एक है फर्स्ट, respect for inherent dignity, individual autonomy, including freedoms to make one's own choices and independence of persons. जिस तरह persons without disabilities, जो जिनका disabilities नहीं है और उनके पास जो जिस तरह freedoms है, facilities है, सभी चीज इनको भी persons with disabilities को भी available होना चाहिए। Then non-discrimination, जैसे डिस्क्रिमिनेशन ना होना चाहिए और इक्वालिटी बेसिस पे उनको ट्रीट करना है। और तीसरा है फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी। जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उनमें उनके पूरी तरह भागीदारी होना चाहिए। डी, respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity. Next slide. पांचवी प्रिंसिपल है इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी। जो जो अपॉर्चुनिटीज पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज को मिलती है वो सब चीज इनको भी अवेलेबल होना चाहिए। दैट इज द मेन प्रिंसिपल। एक्सेसिबिलिटी, जो आज का जो डिस्कशन है वो उस पॉइंट भी इस प्रिंसिपल्स में क्लियरली मेंशन किया है, इसका इसलिए इसका ज्यादा महत्व है। और नेक्स्ट है इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड विमेन। जो प्रॉब्लम्स जो है विमेन का काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनका जो डिस्क्रिमिनेशन है, स्टिग्मा है, और उसको किस तरह ओवरकम करना है और उनको इक्वल बेसिस पे लाना है एज मैन। द फाइनल प्रिंसिपल इज रेस्पेक्ट फॉर इवॉल्विंग कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटीज। मतलब ये है कि किस तरह चिल्ड्रन का उनका क्या क्या उनका कैपेसिटीज जानने का और उसको किस तरह जैसे पौधा बढ़ता है फैसिलिटीज देते हुए उसको आगे बढ़ना है, उसी तरह इनको भी विदाउट एनी बैरियर्स किस तरह बच्चे ग्रो होना है, डेवलपमेंट होना है और उनका जो जो पोटेंशियल्स है उसको पूरी तरह बाहर लाने का ये जो 8th प्रिंसिपल क्लियरली मेंशन किया गया है। और ये 8 प्रिंसिपल्स है जो अपना देश का जो लॉ है उसका प्रियम्बल में ये 8 प्रिंसिपल्स रिप्रोड्यूस किया गया है। तो जो यूएन कन्वेंशन है और अपना कानून है दोनों इक्वल ऑब्जेक्टिव से काम कर रहे हैं। तो इस 2 स्लाइड्स जो हम बताए हैं इसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया है जो इक्वालिटी जो अचीव करना है, इंक्लूजन अचीव करना है, उसके लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इस यूएन कन्वेंशन में आर्टिकल 9 है, वो 50 आर्टिकल्स है, अलग अलग एरियाज के बारे में डील हुआ है, लेकिन जो आर्टिकल 9 है वो एक्सेसिबिलिटी पे डील किया है। देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। मैंडेट्स कंट्रीज टू एंश्योर बैरियर फ्री एक्सेस टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन फिजिकल एनवायरनमेंट, बिल्डिंग, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, वर्क प्लेसेस, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज। मतलब ये हर कंट्री को, हर नेशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि ये सब एरियाज को बैरियर फ्री बनाने का। The next responsibility है development and notification of minimum accessibility guidelines। तो accessibility तो अपन बात करते हैं, लेकिन क्या किस स्टैंडर्ड अचीव करना है वो उसके लिए साइंटिफिकली डिसाइड करके उसको नोटिफाई करना है और सभी स्टेट्स को वो स्टैंडर्ड्स पता होना चाहिए ताकि किस तरह इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह मेजर कर सकते हैं कि किस तरह एक्सेसिबिलिटी अचीव हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। सो अपार्ट फ्रॉम यूएन कन्वेंशन, जो दूसरा ग्लोबल कानून है, अंतरराष्ट्रीय कानून है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसका भी इंडिया साइन किया है। हर जो लाइक अदर कंट्रीज इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा 2030। इसमें जो भी डेवलपमेंट होना है वो डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डेवलपमेंट का बातचीत होता है। इसमें
हर डेवलपमेंट में डिसेबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी को इंक्लूड करना है और उनका भी डेवलपमेंट और ग्रोथ होना है अलोंग विद अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और वो जो स्लोगन दिया गया है, लीविंग नो वन बिहाइंड, मतलब सभी को साथ आगे ले जाना है। उसमें गोल 11.2 में ये डील्स विद एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट और इम्प्रूविंग रोड सेफ्टी। ये जो रोड और ट्रांसपोर्ट का किस तरह एक्सेसिबल करना है, उस गोल पे ज्यादा ध्यान दिया है। और दूसरा गोल है 11.7, यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ, इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल पब्लिक प्लेसेस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जो बिल्डिंग्स है और जो पब्लिक प्लेसेस है, ये सब को किस तरह एक्सेसिबल बनाना है ताकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज उसको पूरी तरह फायदा उठाए। नेक्स्ट, नाउ हम बताएंगे इसमें क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। काफी बैरियर्स है, लेकिन उसमें से हम मेनली 5 बैरियर्स चूज किया है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है एटीट्यूडिनल बैरियर। अपना माइंडसेट ऐसा हो रहा है कि हाँ, ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ये इस काम नहीं कर सकते हैं, कैपेबल नहीं है, तो इस तरह अपना माइंडसेट होता है। उसी तरह फिर अपना एटीट्यूड होता है, डिसीजंस भी होता है, तो उससे उनको हर समय मार्जिनलाइज किया जाता है। तो इस बैरियर ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको करेक्ट करने का। एटीट्यूड जो अवेयरनेस से सभी का एटीट्यूड शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टेक होल्डर्स को चेंज करना है, गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या फैमिली लेवल पे हो, सोसाइटी लेवल पे हो, सभी जगह माइंडसेट चेंज का बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कम्युनिकेशन बैरियर। तो जिस तरह कम्युनिकेशन होता है और दूसरा पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। जैसे फिल्म चल रहा है और लेकिन जो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है वो उससे कुछ समझ नहीं पाएगा क्योंकि वो नहीं सुन सकता है, उसके लिए कैप्शन जरूरी है। कैप्शन नहीं है तो फिर इसको कम्युनिकेशन बैरियर बोलते हैं कि कैप्शन के बिना वो कुछ उनको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। इसी तरह वेबसाइट भी एक्सेसिबल नहीं है ब्लाइंड पर्सन्स को या हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन्स को, तो फिर कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। इसी तरह फिजिकल बैरियर, जो अपन ज्यादा इंपॉर्टेंस फिजिकल बैरियर्स देते हैं, जो लिफ्ट, रैंप या स्टेप्स या ऐसा चीज या साइन लैंग्वेजेस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल एनवायरनमेंट को हैंडल करने का, वो नहीं है, तो फिर उस एनवायरनमेंट को यूज करना मुश्किल है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। देन पॉलिसी बैरियर, काफी पॉलिसीज भी काफी गलत होते हैं, काफी चीज रिवाइज हो रहा है और काफी भी रिवाइज होने वाला है, तो उस पॉलिसीज को भी चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, वो कानून हो सकता है या एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज हो सकता है, वो सब प्रोसीजर्स भी हो सकता है, वो सब चेंज करना बहुत जरूरी है। देन द लास्ट एंड ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बैरियर है, सोशल बैरियर। तो जिस तरह हम बताया कि जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, तो इन पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अलग रखना। कैन यू हियर मी प्रगति? PPT is not being shown. Activities for the PPT. Is it from our side or from their side? No, it's from their side. See, we are okay. You are audible. Pragati, I can't see the PPT. Yes, ma'am. I struggle here. Sure, okay. But it is fine, it is unmute one. आपकी पीपीटी तो नहीं सर, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। Okay, okay. ओके, यस सर। लेकिन पीपीटी आपको दिखाई नहीं दे रहा शायद? It is coming. नहीं सर। ठीक है। The voice too. हमारा वॉइस ठीक है ना? हमारा आवाज ठीक है? जी जी बिल्कुल सर, आवाज आपकी बिल्कुल हाँ सर, क्लियर ठीक है। हाँ, थैंक यू। या
तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पीपीटी तो आ जाएगा। तो अब हम जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, जो कानून है दिव्यांग जन का, जो राइट्स का कानून है 2016, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट हम थोड़ा हमारे बारे में बताएंगे इस स्टेज पे। हम अप्रैल 2012 में ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट को। उस समय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का मिनिस्ट्री था, एक ही डिपार्टमेंट जो सोशल जस्टिस का मिनिस्ट्री था। लेकिन अप्रैल 12 के बाद जो 3-4 महीने में, जो मई 2012 में ये अपना नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है, दिव्यांग जन डिपार्टमेंट। तो तब से हम इस डिपार्टमेंट में थे और अक्टूबर 21 में हम रिटायर हुए थे। सो अबाउट 9.5 years हम इस डिपार्टमेंट में काम किए थे। तो उसी समय ये जो 1995 का जो कानून है वो उस समय इम्प्लीमेंट था और उसको रिव्यू हो रहा था काफी फाइनल स्टेज पे। तो उसके बाद फिर बिल इंट्रोड्यूस किया था। प्रगति, आई एम स्टिल नॉट एबल टू सी दी पीपीटी। पीपीटी अभी दिखाई नहीं दे रहा, देख लीजिए। तो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 2014 में, लेकिन फाइनली 2016 में बिल पास हुआ था दिसंबर में, और फाइनली उसको इट केम इनटू फोर्स इन अप्रैल 2017। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है। जो यूएन कन्वेंशन हम जो बात कर रहे थे, उसमें जो भी आर्टिकल्स है, अबाउट 50 आर्टिकल्स, सभी आर्टिकल्स अपना कानून, देश के कानून में सब रिफ्लेक्टेड है। तो उससे पता चल जाता कि अपना पूरी तरह कमिटमेंट है यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशंस का इंप्लीमेंट करने का। नेक्स्ट स्लाइड। सो इस कानून के बारे में हम बात कर रहे थे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो डेफिनेशन का, डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज बैरियर्स क्रिएटेड बाय द एनवायरनमेंट एंड नॉट ड्यू टू इंडिविजुअल्स इम्पेयरमेंट। पहले ये होता था कि जो भी प्रॉब्लम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का होता, वो हम ब्लेम करते थे उनके डिसेबिलिटी पे, उनके प्रॉब्लम आईसाइट हो या हियरिंग हो या लोकोमोटर हो। लेकिन अब डेफिनेशन ये है कि एनवायरनमेंट खराब होने से डिसेबिलिटी पैदा होता है। इसका मतलब यह है कि एनवायरनमेंट को ठीक से करेंगे तो इंडिविजुअल जो इम्पेयरमेंट है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। हम एग्जांपल देंगे, जिस तरह कोई कॉन्फ्रेंस है फर्स्ट फ्लोर में और जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का पर्सन है नहीं चल सकता है और फर्स्ट फ्लोर पहुंचना है, तो जब या रैंप या लिफ्ट या व्हीलचेयर उनको नहीं दिया गया और वहाँ नहीं पहुंचा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी का, क्योंकि ये फैसिलिटीज नहीं दिया है, तो उससे उनको फर्स्ट फ्लोर में पहुंचना मुश्किल है। लेकिन जब उनको व्हीलचेयर देंगे, कोई अटेंड देंगे और या रैंप रहेगा या लिफ्ट रहेगा, आसानी से वो फर्स्ट फ्लोर पहुंच सकता है। तो उनका जो भी चलने का प्रॉब्लम है वो कोई असर नहीं पड़ता, वो फर्स्ट फ्लोर पहुंच के कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर सकता है और सबके साथ फुल्ली पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन गिवन इन द यूएन कन्वेंशन और अपना डिसेबिलिटी लॉ में भी, कि एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल डिसाइड कोई डिसेबिलिटी है या नहीं। सेक्शन 3, इट गारंटीज इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जो भी फैसिलिटीज और फ्रीडम्स पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज को अवेलेबल है, इनको भी अवेलेबल होना चाहिए। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ। Then section 11 ensures all polling stations are accessible. It is one of the political rights कि उनको वोट करने का है, तो जो पोलिंग स्टेशन एक्सेसिबल नहीं है तो फिर अंदर जाके किस तरह वोटिंग करेगा। तो वो पूरी तरह स्टेशन को एक्सेसिबल करना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी का और गवर्नमेंट का। वो राइट एक्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, Section 12 is also very important, access to justice. जिस तरह persons with disability, without disabilities कोर्ट जाते हैं, आसानी से फाइल करते हैं, आसानी से हियरिंग सुनते हैं और आसानी से जजमेंट भी पढ़ सकते हैं,
लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो है, जो ब्लाइंड हो या हियरिंग इम्पेयर्ड हो या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है पूरी तरह जुडिशरी को एक्सेस करने का, फाइल करने में या वहाँ हियरिंग के टाइम में विटनेस होने में। जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है, विटनेस है, उनको वहाँ कुछ समझ नहीं आएगा लॉयर क्या बात कर रहा है या जज क्या कर रहा है, तो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर वहाँ अवेलेबल होने से वो उनको आसानी से पता चल जाता है कि क्या प्रोसीडिंग्स हो रहा है। इसी तरह ब्लाइंड है, जजमेंट या जो पेपर्स वहाँ जुडिशियल पेपर्स पढ़ना है तो उनके लिए ब्रेल में देना है या ऑडियो में देना है, उससे उनको आसानी होगा कि क्या कंटेंट है और क्या किस तरह वो मैटर को हैंडल करना है। तो एक्सेस टू जस्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें काफी काम करने का है। देन डेफिनेशन ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस लॉ में दिया गया है कि जहां गैप्स है, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज दोनों में फैसिलिटीज का फर्क है, तो उस फैसिलिटीज को इक्वल बनाना है, तो जो गैप है मॉडिफाई करना है, एडजस्ट करना है। जिस तरह हम एग्जांपल दिया है, फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए व्हील चेयर देना चाहिए, लिफ्ट देना चाहिए, रैम्प देना चाहिए, उस तरह वो गैप चले जाता है, तो उसको बोलते हैं रीजनेबल अकोमोडेशन। सो हर जो 21 कैटेगरीज है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन द लॉ में जो रिकॉग्नाइज किया गया है, हर कैटेगरी को दे हैव सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम्स, तो समझना है और उसको सॉल्यूशन ढूंढना है, वो हमारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रीजनेबल अकोमोडेशन तभी तो अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 16 वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात होता है। इसमें जो उनका बिल्डिंग्स हो, कैंपस हो और जो भी फैसिलिटीज हो, स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, हर एरिया पे उनको एक्सेसिबल बनाना है ताकि उन स्टूडेंट्स फुली पार्टिसिपेट कर सके अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स विदाउट डिसेबिलिटीज। सेक्शन 25 बैरियर फ्री एक्सेस टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। हर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, इवन जो मेडिकल कॉलेजेस है, हर जो हॉस्पिटल्स है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, नर्सिंग होम्स, इन सब एक्सेस फ्री, बैरियर फ्री एक्सेस बनाने का ये प्रोविजन दिया गया है। Can we come to the next slide, Pragati? And can we request people to switch off their mobile, I mean, at least mute करने के लिए, ताकि there is no disturbance. Section 29 and 30 और जैसे कल्चर, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, इन सब भी फैसिलिटीज को एक्सेसिबल बनाना है ताकि उन लोग पूरी तरह पार्टिसिपेट कर सके, वो सेक्शन 29 और 30 में दिया गया है। देन सेक्शन 40 to 46, ये पूरा आज जो जिस दिन पे अपन बात कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सेसिबिलिटी पे क्लियरली इन डिटेल दिया गया है। पब्लिक बिल्डिंग क्या होता है, पब्लिक फैसिलिटीज, सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यूनिवर्सल डिजाइन, ये सब चीज पूरी तरह डिफाइन किया गया है लॉ में। जिस तरह फॉर एग्जांपल पब्लिक बिल्डिंग है, ये सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, इसमें प्राइवेट बिल्डिंग्स भी है जो पब्लिक जाते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस शॉपिंग मॉल है, वो शॉपिंग मॉल तो प्राइवेट का है, लेकिन जब जितना जो ज्यादा पब्लिक जाते हैं वहाँ, तो उसको डिफाइन किया गया है वो पब्लिक बिल्डिंग है। इसी तरह डेफिनेशंस काफी ज्यादा ब्रॉड स्कोप में दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है टू फॉर्मुलेट मिनिमम एक्सेसिबल स्टैंडर्ड्स, जो अपन फिजिकल एनवायरनमेंट, जो बिल्डिंग्स और ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, क्लियरली नोटिफाई होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए और पूरी तरह पब्लिसिटी करना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए, ताकि यूनिफॉर्म नॉर्म्स तभी स्टेट गवर्नमेंट्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सके इक्वली। और ये नॉट ओनली अर्बन एरियाज बट रूरल विलेजेस में भी
ये इस तरह स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट होना है, इस तरह सेक्शन 40 में दिया गया है। और आप लोगों को पता है कि हार्मोनाइज गाइडलाइंस 2017 में इशू हुआ है, जो पब्लिक बिल्डिंग्स किस तरह एक्सेसिबल होना चाहिए। सिमिलरली बस बॉडी कोड भी दिया गया है, ट्रांसपोर्ट जो बसेस किस तरह एक्सेसिबल होना चाहिए। इसी तरह वेबसाइट्स भी कैसा एक्सेसिबल होना चाहिए फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, स्पेशली जो विजुअल, हियरिंग, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 41 में जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और जो व्हीकल्स जो पर्सन्स यूज करेंगे, अडेप्टेड व्हीकल्स, ये इंकरेज करने के लिए ये प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 41 में। 42 आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जो मीडिया है, रेडियो, टीवी और कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, इन सबको एक्सेसिबल बनाने का। जिस तरह टीवी प्रोग्राम्स है, पर्सन्स विद हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए कैप्शनिंग होना चाहिए, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। इसी तरह हर मीडिया में जो 21 डिसेबिलिटीज है, उन सब का रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक नीड्स देख के उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सेक्शन 43, कंज्यूमर गुड्स विल बी यूनिवर्सली डिजाइन्ड। मतलब ये है कि जो भी गुड है, प्रोडक्ट है, जो पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज यूज करते हैं, उसको पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी यूज करने का इस तरह टेक्नोलॉजी बनाने का इसमें प्रोविजन है। नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 44 में न्यू बिल्डिंग्स, नया बिल्डिंग्स जो बनेगा, उसके लिए प्रोविजन ये है कि जब वो एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस कंप्लाई करने का वो अग्री करेंगे, तभी तो उनको परमिशन दिया जाएगा नया बिल्डिंग्स बनाने का। सेक्शन 45 और 46 है, जो पहले जो 95 कानून में नहीं था, लेकिन इसमें है कि जो भी एक्सेसिबल बनाना है, जो बिल्डिंग्स हो या ट्रांसपोर्ट हो, आईसीटी हो, इसके लिए टाइम लिमिट दिया गया पूरी तरह देश में इम्प्लीमेंट करने का। जिस तरह जो एक्सेसिबल स्टैंडर्ड से बनने के बाद विद इन 5 years सभी पब्लिक बिल्डिंग्स एक्सेसिबल होना चाहिए। सिमिलरली जो ट्रांसपोर्टेशन और सर्विसेज है, उसका 2 साल में होना चाहिए। इस तरह कानून में टारगेट दिया गया ताकि ज़्यादा जोर से अपना गोल अचीव कर सके। नेक्स्ट स्लाइड। और ये जो उससे पहले जो सिप्डा स्कीम है, आप लोग जानते हैं, एक स्कीम है जो वेरियस प्रोविजंस इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट को पैसा चाहिए और कुछ टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए। तो उसके लिए एक स्कीम बनाया गया ताकि ग्रांट इन एड दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स को, ऑटोनोमस बॉडीज को, यूनिवर्सिटीज को, सभी पब्लिक प्लेसेस और इनको एक्सेसिबल बनाने का। और ये है जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, उसमें जो कवर हुआ है, उसके अलावा जो भी है इस सिप्डा स्कीम से फंड मिलता है सभी एजेंसीज को। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। एएसी, आप लोग सुगम्य भारत अभियान आप सुना है, ये दिसंबर 2015 में लॉन्च हुआ है और मेनली सब जो पब्लिक प्लेसेस और ट्रांसपोर्ट और वेबसाइट्स को सभी को एक्सेसिबल बनाने का ऑब्जेक्टिव है, और ताकि सभी लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और फुल पार्टिसिपेशन हो सोसाइटी में सभी एरियाज में, ताकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज सभी जैसे परफॉर्म कर सके और प्रोडक्टिव लाइफ जी सके। और इस कैंपेन में 3 कंपोनेंट्स जैसे हम बताया जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, बिल्टअप एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट और आईसीटी एक्टिविटी। बिल्टअप मतलब जो पब्लिक प्लेसेस है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हो या बस स्टैंड्स हो, और आईसीटी वेबसाइट्स, मोबाइल्स और अदर डिजिटल गैजेट, सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है। नेक्स्ट स्लाइड। Now, built-up environment में as per the campaign, 1671 state government buildings 49 cities में आइडेंटिफाई किया गया और उनको फंडिंग अभी जारी है उसको पूरी तरह रिट्रोफिटिंग करने का।
और इसमें काफ़ी एक्सरसाइज होता है। प्रपोजल स्टेट से आने के बाद फिर एक ऑडिट होता है चेक करने के लिए कि क्या क्या फीचर्स चेंज करना है। फिर पैसा देने के बाद फिर लास्ट में इंस्पेक्शन होता है कि पूरा फीचर्स उसमें दिया गया है नहीं। तो इसी तरह जो 1100 बिल्डिंग्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आइडेंटिफाई किया है उसको भी चेंज करने का इस कैंपेन में है, और इसके अलावा और आगे भी काफ़ी काम करने का है। नेक्स्ट स्लाइड। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा फोकस 4 एरियाज में दिया गया है। एक है रेलवेज है, 709 स्टेशंस, रेलवे स्टेशन को इम्प्रूव एक्सेसिबल बनाने का। इसी तरह 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और 69 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, काफ़ी चेंजेस हुआ है और इस पे मॉनिटरिंग और जारी है। और इसी तरह 1 लाख से ज़्यादा जो पैसेंजर बसेस है स्टेट गवर्नमेंट्स में, उसका भी एक्सेसिबल बनाने का पूरा एक्सरसाइज जारी है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ रिगार्डिंग वेबसाइट, जो इस दिन का जो मेन थीम है एक्सेसिबिलिटी है, लेकिन ज़्यादा तक जो इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे इज एम्फसिस ऑन डिजिटल एक्सेसिबिलिटी। जैसे डिजिटल एक्सेसिबिलिटी जो यूज ऑफ वेबसाइट्स और कंप्यूटर्स है और मोबाइल फोन्स है, इसका किस तरह पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज को अवेलेबल है फैसिलिटीज, फीचर्स, उसी तरह पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज को भी अवेलेबल होने का प्रावधान है। तो जैसे फॉर इंस्टेंस हम कुछ एग्जांपल देंगे, ये जो विजुअल डिसेबिलिटीज है उनके लिए क्या क्या होना चाहिए, आई मीन वेरी ब्रीफली हम बताएंगे। जैसे प्रोग्राम्स में वो जो देख नहीं सकते हैं, तो जो जैसे टीवी प्रोग्राम्स या और वीडियोस जो भी है तो नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देना है विजुअल पर्सन्स को। और सिमिलरली यूज ऑफ कीबोर्ड, क्योंकि माउस यूज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कीबोर्ड जरूरी है। सिमिलरली हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए जिस तरह हम बताया कि कैप्शनिंग जरूरी है, जो जब भी वीडियो दिखाएंगे वो तो देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं, तो उसके लिए कैप्शनिंग जरूरी है। और सिमिलरली जिनका लोकोमोटर प्रॉब्लम्स है डिसेबिलिटी, उनके लिए भी ऑल्टरनेटिव कीबोर्ड्स होना चाहिए, आई कंट्रोल सिस्टम्स होना चाहिए और अडेप्टिव हार्डवेयर उनको होना चाहिए, ताकि और टाइपिंग में आसानी से टाइप करने का, क्योंकि कभी उनका हाथ ठीक से काम नहीं करता, उसके लिए अडेप्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली कॉग्निटिव जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, इस तरह जैसे स्पेशली NMHR और निपिट जो हैंडल कर रहा है जो केसेस को, उनके लिए एन अनक्लटर्ड स्क्रीन इतना साफ होना चाहिए, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कंसिस्टेंट नेविगेशन, यूज ऑफ प्लेन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, स्लो लैंग्वेज होना चाहिए, ताकि उनको पता चले क्लियरली इंफॉर्मेशन जो दिया गया है वो उनको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो इसमें 805 स्टेट गवर्नमेंट वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, उनको एक्सेसिबल बनाने का है। सिमिलरली 100 सेंट्रल गवर्नमेंट वेबसाइट्स, उनको भी एक्सेसिबल बनाया जा रहा है। और इसमें AAC MIS पोर्टल एक स्टार्ट किया गया है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो भी फंडिंग ले रहे हैं और उसमें जो भी इम्प्रूव हो रहा है, तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, फ्रॉम टाइम टू टाइम रियल टाइम जो इम्प्रूवमेंट है वो सब पोर्टल में डालेंगे, ताकि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स दोनों को दिखे और ठीक तरह मॉनिटर करें। इसी तरह सुगम्य भारत ऐप वो भी लॉन्च हुआ है, जिस तरह लोग जहाँ जहाँ एरियाज एक्सेसिबल नहीं है उसको क्लिक करके इस ऐप से भेज सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देख के फिर जो जो अथॉरिटीज को इसको करेक्ट करना है उनको फॉरवर्ड करेंगे। तो ये है जो AAC कैंपेन का। और द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट स्लाइड प्रगति, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द एक्सेसिबल गाइडलाइन। जो जो एक्सेसिबल गाइडलाइंस इशू हुआ है 3-4, उसके अलावा और काफ़ी इशू होना है,
जैसे जितना सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज है, हर मिनिस्ट्री में कुछ उनका यूनिक प्रॉब्लम होता है। तो जैसे मैं हम एग्जांपल दे रहे हैं, जिसमें जो गाइडलाइंस बन रहा है और काफ़ी बनेगा, सिविल एविएशन जो एयरपोर्ट में, रेलवेज, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जैसे फिल्म हो या टीवी, रेडियो और दूसरा मीडिया, सोशल मीडिया, एजुकेशन, शिपिंग, कल्चर, तो हर सेक्टर में कुछ गाइडलाइन जरूरी है। तो हर मिनिस्ट्री इस पे काम कर रहा है, तो आगे काफी गाइडलाइंस आने का स्कोप है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हम आखिरी में आएंगे, हम बता देंगे इसमें ये इस डिस्कशन के बाद कुछ कंक्लूजन्स है, ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जैसे persons with disabilities have right to enjoy various freedoms including facilities and services equally with others। जिस तरह हम आसानी से पेटीएम यूज करते हैं, आसानी से एप्स यूज करते हैं टू बुक आवर टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स हो या ट्रेन टिकट्स हो या कोई बिल पे करने का, या कुछ इवन इंटरनेट बैंकिंग भी है जो आसानी से हो रहा है। तो इस सब फैसिलिटीज जो पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज को अवेलेबल है, इनको भी अवेलेबल होने का मेन ऑब्जेक्टिव है, एंड इट इज द राइट। और काफ़ी इस पे डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन और काफ़ी अचीव करने का स्कोप है। और हमारा ओपिनियन ये है कि एम्पावरमेंट और इंक्लूजन, इन दोनों को अचीव करने के लिए एक्सेसिबिलिटी ज़रूरी है। एक्सेसिबिलिटी से ही लोग हर स्फीयर में इंक्लूड हो सकते हैं और उसके बाद उनको एम्पावर किया बन जाता है, एम्पावर्ड बन जाते हैं। देन accessibility accompanied by use of technology and forward looking policies is very important। इसमें accessibility से बातचीत होता है, लेकिन accessibility किस तरह उनको रियलिटी में लाना है, तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और अपना पॉलिसी से ही accessibility को रियलिटी बना सकते हैं। तो इसमें काफ़ी काम करना ज़रूरी है। हर सेक्टर, हर ऑर्गेनाइजेशन इसमें उनका योगदान ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। जिस तरह हम कहा है कि और काम हो रहा है, जो 95 जो लॉ है उससे ज़्यादा पेस से काम हो रहा है जो 2016, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट जो मेंशन है, टाइमलाइंस मेंशन है, और इसमें ऑफेंसेस ऑफ पनिशमेंट का कानून में क्लियरली मेंशन किया है कि ये प्रोविजंस इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो उसके लिए पनिशमेंट भी है। तो इसलिए इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका बनता है कि नॉट ओनली गवर्नमेंट बट इवन सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स कि इस कानून को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करे और आगे बढ़ने का स्कोप है। इसके लिए इनोवेशन, रिसर्च और सभी का एफर्ट्स ज़रूरी है, और सभी स्टेक होल्डर्स इकट्ठा काम करने से ये जो कानून है उसको गोल्स अचीव करने का चांस जरूरी है। एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स accompanied by timelines can cover all aspects of accessibility across complete urban and rural areas। सिर्फ शहर में नहीं, लेकिन हर गांव में इस अभियान जो सुगम्य भारत अभियान पहुंचना है और हर स्फीयर में एक्सेसिबल बनाने का ये अपना आज दिन अपने लिए रिमाइंडर है, ताकि अपन इसमें ज्यादा सोचे और हर रोज इस पे काम करे और अपना कमिटमेंट बढ़ाना है। that is the main objective of today, to increase awareness सभी को अवेयरनेस करना है। और जो सेक्शन 40 ये एक्ट में हम ये जो सेक्शन 40 बता देंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 47। इसमें बताया गया है अवेयरनेस, किसको अवेयरनेस करना है। जो प्रोफेशन डिफरेंट प्रोफेशंस में है सभी को अवेयरनेस कर, जैसे इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट हो, जब वो काम कर रहे हैं और जब कुछ प्लान बनाना है, उनको डिसेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस है
और हर डिसेबिलिटी के क्या प्रॉब्लम है और किस तरह उसको निपटाना है, जब उनको इस तरह नॉलेज और इनपुट्स रहेगा तो उनका काम परफेक्ट होगा, क्योंकि उस जो सॉल्यूशंस देंगे वो एप्लीकेबल होगा। Legislators, MLA, MPs, administrators, police officers, judges, lawyers, university teachers, doctors, nurses, paramedical personnel, social welfare officers, rural development officers, ASHA worker, Anganwadi workers, engineers, architects, community workers, इन सब को जब सेंसिटाइज करेंगे तो तभी तो इस ऑब्जेक्टिव जो अचीविंग एक्सेसिबिलिटी in the long run होने का चांस है। थैंक यू वेरी मच। Pragati, any questions I can थैंक यू सो मच सर। सर अगर आप हमारे साथ और थोड़ी देर जुड़कर रह सकते हैं तो क्या हम थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस करें, इफ पॉसिबल फॉर यू? ओके, क्योंकि दूसरे स्पीकर ही इज वेटिंग। वी कैन हैव क्वेश्चंस आफ्टर द स्पीकर, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सो मंतोष जी, कैन यू हियर मी? यस मैम। मंतोष जी इज हियर विद अस। बहुत अच्छा लगा मंतोष जी, आपको बहुत दिनों बाद यहाँ पर सुन करके और देख करके। जी। और मंतोष जी का इंट्रोडक्शन जो है वो फॉर्मल हम इन द बिगिनिंग ऑफ वेबिनार करा चुके हैं, तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा मंतोष जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मंतोष जी जो है इस विषय पर अपनी बात रखें। और इसके साथ ही मैं बाकी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है ना, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो अपना वीडियो और ऑडियो प्लीज म्यूट मोड पर रखें, ऑफ रखें, क्योंकि इसे वेबिनार के बीच में, प्रेजेंटेशन के बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है। तो आप लोग प्लीज अपना ऑडियो और वीडियो बंद रखें। मंतोष जी आप प्लीज, नाउ डायस इज योर्स। जी, थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं प्रगति मैम को और जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, चाहे वो NIMHR एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। प्रगति मैडम के साथ मुझे पूर्व में काम करने का अवसर मिला है। मैम जब CRC लखनऊ में हुआ करती थी तो उन्होंने हमें बहुत काम करने का अवसर दिया है। साथ ही जो पूर्व के वक्ता थे आदरणीय KVS राव सर के साथ भी कई बार कई मीटिंग में बैठने का मौका मिला है और हम लोगों ने एक्सेसिबिलिटी के विषय पर बहुत डिस्कशन किया है। तो राव सर ने जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेसिबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो भी एक्ट्स एंड पॉलिसीज हैं, उसको लेकर के बहुत विस्तार से राव सर ने बताया है। तो उसको दोहराने के बजाय, क्योंकि मैं भी एक विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और रिसर्चर हूँ, प्रोफेशनली स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ, तो एक अपना इंटरेस्ट भी है। तो मैंने अब तक जो एक्सेसिबिलिटी को लेकर के जो मेरा अनुभव है, क्योंकि कई जगह इंस्ट्रक्शन टीम में भी जाने का अवसर मिलता है, तो उसके आधार पर मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। देखिए, जो आज ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, सबसे मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये हम लोगों को एहसास करने का दिन है कि ये एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करने के लिए, एक्सेसिबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आज हमें संकल्प लेने का दिन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या इंटरनेशनल एजेंसी जितनी हैं, उन्होंने जो एक्सेसिबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो भी एक्ट्स एंड पॉलिसीज बनाई हैं, जो उनकी कोशिशें हैं, जो उनका प्रयास है, जो उनकी योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम और आप आम नागरिक की भी है। अब सरकार ने तो, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
एक्सेसिबल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत प्रयास किया है। बीते 7-8 सालों में तो बहुत व्यापक स्तर पर प्रयास चल रहा है। बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को फंड भी रिलीज किए जा रहे हैं इसके लिए। लेकिन अब जो एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करने के लिए सर ने बहुत जो भी बैरियर्स हैं, बैरियर्स की चर्चा पहले सर ने किया, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि समय भी कम है। तो गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है, जो गवर्नमेंट की जो कोशिश है, जो मुहिम है, वो सही तरीके से लागू हो रही है या नहीं, ये इंश्योर करना हमारा आपका दायित्व है। मैं 2-4 एग्जाम्पल आप सभी के सामने रखना चाहूंगा जो मैंने फेस किया है, जो प्रॉब्लम हमने फेस किया है। एक प्राइवेट स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए मैं गया था अपने एक कोलीग के साथ। तो वहाँ इंस्पेक्शन के दौरान वहाँ उन्होंने एक्सेसिबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या उनके द्वारा प्रयास किए गए, बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया और मुझे सब कुछ टच करके एक्सप्लोर करके दिखाया। लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक उनके द्वारा की गई। वो मिस्टेक क्या था कि जो ब्रेल साइनेज उन्होंने लगाए थे, ब्रेल साइनेज, मैं शौचालय के पास गया, शौचालय में उन दिखाया कि देखो ब्रेल साइनेज लगाया है, लेकिन हुआ क्या कि महिला शौचालय के सामने उन्होंने पुरुष शौचालय का ब्रेल साइनेज लगा लिया। अब इसको आप सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, जब मैं शौचालय के पास गया तो मेरे जो कुलीग थे उनको हमने कहा कि थोड़ा मेरा बैग पकड़ना, मैं थोड़ा शौचालय से आता हूं। तो जब मैं शौचालय की ओर बढ़ने लगा तो मुझे एक व्यक्ति ने रोका कि नहीं 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 सर, ये महिलाओं का शौचालय है। नॉनसेंस, ये महिलाओं का शौचालय है, लेकिन यहाँ तो ब्रेल साइनेज आपका है दर्शा रहा है कि पुरुष शौचालय। तो ये देखिए अवेयरनेस की कमी। उन्होंने ब्रेल साइनेज दिखाने के लिए तो लगा दिया और प्रिंट में उन्होंने ऊपर महिला शौचालय लिख भी रखा है, लेकिन हमारा ब्रेल साइनेज क्या कह रहा है, पुरुष शौचालय। तो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति जिसके लिए वो ब्रेल साइनेज लगाया गया है, तो उसके वो क्या समझेगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक वहां हुई थी। फिर हमने उनको बताया और फिर उन्होंने अपनी गलती को एहसास करके और उसको तुरंत सुधार करवाया। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, मैं एग्जाम्पल आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूं कि आज चाहे वो गवर्नमेंट के प्रेशर से हो या सोसाइटी के प्रेशर से हो, एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में काम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन शो ऑफ ज्यादा है, काम कम है। इस बात को मैं कहते हुए थोड़ा भी संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि अब आज भी लोग मानते हैं कि अच्छा रैंप बनवा दिया तो एक्सेसिबिलिटी की जिम्मेदारी हमारी पूरी हो गई, ब्रेल साइनेज लगवा दिया, हैंड ग्रेन्स लगवा दिया तो हमारा काम पूरा हो गया। अब आप बताइए, ये शौचालय वाले एग्जाम्पल को ही, वो तो ठीक है वहां पे व्यक्ति मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां मौजूद ना हो तो ब्रेल साइनेज का सहारा लेकर के कोई विजुअली इंपेयर्ड पर्सन गलत जगह जा सकता है और उसके कई सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए जहां भी एक्सेसिबिलिटी से संबंधित कोई कार्य हो रही है तो वहां एक्सपर्ट सजेशन लेना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट सजेशन नहीं लिए जा रहे हैं। आज सर ने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन और अन्य जो गवर्नमेंट की मुहिम है उसकी चर्चा सर ने की। तो एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में काम जो हो रहा है, जहां पे काम नहीं हो पाया है वहां पे कैसे काम किया जाए, कैसे वहां के एनवायरनमेंट को एक्सेसिबल बनाया जाए, कैसे हर उस सर्विसेज को हमारे जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए, जो एक नॉन डिसेबल पर्सन जिस फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं, जो चीज उनके लिए सुलभ है, वो हमारे डिसेबल जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी किस प्रकार से सुलभ हो, ये सुनिश्चित करने के लिए ही एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन बनाया गया है। सर ने कम्युनिकेशन बैरियर और एटीट्यूडनल बैरियर की भी बात की। तो इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए मैं और भी कई सारे उदाहरण देना चाहूंगा। एटीट्यूडनल बैरियर की बात मैं दिल्ली गवर्नमेंट के इंक्लूसिव स्कूल में स्पेशल एजुकेशन टीचर का काम कर रहा हूं। हमने फेस किया है और कई सारे जब हम स्पेशल एजुकेशन के लोग आपस में बैठते हैं तो हम आपस में डिस्कशन करते हैं। एक पेरेंट्स
उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा डिसेबल है, एक दूसरा बच्चा नॉन डिसेबल है। नॉन डिसेबल बच्चा समय पे स्कूल जाए, समय पे वो होमवर्क करे, उसको एजुकेशन से संबंधित सारी सुविधाएं मिले, ये पेरेंट्स इसको प्राथमिकता के आधार पर लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो हमारा डिसेबल स्टूडेंट है उसके लिए पेरेंट्स की प्राथमिकता के आधार पर अंतिम सूची की प्राथमिकता होती, सूची में उनके अंतिम स्थान की प्राथमिकता होती है बच्चे को एजुकेशन फैसिलिटी उपलब्ध कराना। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा CWSN बच्चे जो हमारे इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स एक दिन बच्चे को स्कूल लाएंगे, 4 दिन नहीं लाएंगे। पूछने पर सीधे कहेंगे कि आज मुझे यहाँ जाना था, आज मुझे वहां जाना था, आज मेरे घर में गेस्ट आ गए थे, तरह तरह के बहाने करेंगे। वो डिसेबल बच्चे के एजुकेशन को लेकर के वो उतना सीरियस है ही नहीं जितना वो अपने नॉन डिसेबल बच्चे के एजुकेशन को लेकर के सीरियस है। तो ये एटीट्यूडनल बैरियर है, इसे हमें दूर करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को जितने हम इसमें रिसोर्स पर्सन हैं, जो हम स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो सपोर्ट सर्विसेज को इंश्योर करने की जिम्मेदारी हम जिन लोगों पे है, हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। गवर्नमेंट भी समय समय पर अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, उस अवेयरनेस कैंपेन को सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए, ये सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करें, हम टीचर की काउंसलिंग करें। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में जो टीचर होते हैं, जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, जो क्लास टीचर होते हैं, वो ये मान बैठते हैं कि ये जो CWSN बच्चा है, ये जो डिसेबल बच्चा है, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रसित हो, तो वो मान बैठते हैं कि ये इनको पढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेशन टीचर की है। वो सीधे पकड़ के ले आते हैं, ये सर ये आपका बच्चा आ गया, लो इसको संभालो। तो उनको बताना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी कि नहीं, ये बच्चा ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, ये आपका भी बच्चा है। इसको पढ़ाने की, इसके लिए एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करने की जितनी जिम्मेदारी एक स्पेशल एजुकेशन टीचर के रूप में मेरी है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है। हम आप दोनों मिल करके, सब लोग मिल करके, और हम इस बच्चे को एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए काम करेंगे, तभी बात बनेगी। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, आज बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो रही है, लेकिन ये पर्सनल एक्सपीरियंस और जो हमारे कम्युनिटी, जो डिसेबिलिटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे जो हमने फीडबैक लिया है, क्योंकि मैं रिसर्चर भी हूं और रिसर्च पेपर वगैरह भी लिखता रहता हूं, तो हमने जो डेटा कलेक्शन किया है, लोगों से राय लिया है, उसके आधार पर ट्रांसपोर्टेशन में जैसे एक बस की फैसिलिटी देख लें, दिल्ली गवर्नमेंट में या अन्य जगह पर, यूपी गवर्नमेंट में, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बस की फैसिलिटी, स्टेट गवर्नमेंट ने बस की फैसिलिटी बहुत अच्छी कर रखी है। लेकिन होता क्या है, बस का जो ड्राइवर है वो एक डिसेबल पर्सन्स को सपोर्ट करने के बजाय वो देखेगा कि अरे एक डिसेबल व्यक्ति है, एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है या एक ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड पर्सन है, वो बस पे यात्रा के लिए वो वेट कर रहा है, तो उसको देखते ही वहां बस रोकने के बजाय उसको पूरे सम्मान के साथ बस में चढ़ाने के बजाय वो सीधे जो है बस को भगा ले जाएगा। तो ऐसी ये है एटीट्यूडल बैरियर, लोगों का जो लोगों की एटीट्यूड जो है उसमें हमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ये तभी हो पाएगा जब हम सभी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको हम समय समय पर ट्रेनिंग दें, उनको इस बात के लिए समझाएं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इसको इंश्योर करना पड़ेगा, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। और एक जितना ही एक नॉन डिसेबल व्यक्ति का गवर्नमेंट की फैसिलिटी पे या अन्य फैसिलिटी पे, गवर्नमेंट की जो रिसोर्सेज हैं उन पे जितना अधिकार है, उतना ही अधिकार एक डिसेबल पर्सन का है, उतना ही इम्पोर्टेंस उसके लिए डिसेबल पर्सन का है, तो उसको भी उपयोग करने का उतना ही अधिकार है। ये हम अवेयरनेस के माध्यम से, हम ट्रेनिंग के माध्यम से प्रोवाइड करा सकते हैं। अब बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, मैं
एक्सेसिबिलिटी टेस्टर की भूमिका में भी रहता हूं। कई सारे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं जिसके एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कमेटी का हिस्सा मुझे भी बनाया गया है। समय समय पर मैं भी एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में काम करता रहता हूं। एक डिवाइस मैं आप सभी के समक्ष दिखाना चाहूंगा। ये स्मार्ट विजन ग्लासेज है। ये स्मार्ट विजन ग्लासेज ये एक विजुअली इम्पेयर्ड को आवागमन में सुविधा के लिए ये तैयार किया गया है। ये चश्मा है, इस चश्मे को मैं पहन लिया। आप देख पा रहे होंगे इस पे लेफ्ट फ्रेम में एक कैमरा लगा हुआ है और ये जो यूएसबी पोर्ट है ये हमारे मोबाइल से जुड़ जाएगा। उसके बाद ये जो स्मार्ट विजन ग्लास है ये एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन को आवागमन में 3 मीटर की दूरी तक जो भी वस्तु सामने आएगी उसको बोल करके बता देगा। और साथ ही इसकी एक बहुत अच्छी इसकी विशेषता यह भी है कि ये एक विजुअली इंपेयर्ड की जो गोपनीयता सदैव भंग होती है। जैसे अभी मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूं, कई सारे ऐसे सर्कुलर या ऐसी सूचनाएं, ऐसे इंफॉर्मेशन हमारे पास रिटर्न में आते हैं जो कि सबके साथ शेयर करना उचित नहीं होता। तो वो हमें प्राप्त हुआ तो हम किसी के पास लेके जाएंगे, एक विजुअली इंपेयर्ड किसी के पास लेके जाएगा कि भैया ये पढ़ दो थोड़ा क्या लिखा हुआ है, लेकिन हमने उसी व्यक्ति से पढ़वा लिया जिसको ये जानकारी नहीं मिलनी थी, तो हमारी गोपनीयता भंग हो गई। ये जो ग्लास है इनमें एक खासियत है कि अगर हम इसके कैमरे के सामने कोई प्रिंट डॉक्यूमेंट को रखेंगे, कोई हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को रखेंगे, तो इसको ये रीड करके बहुत फ्लुएंटली रीड करके, हिंदी हो, इंग्लिश हो या अन्य कई सारी भाषाएं हैं, रीड करके बता देगा। तो ये एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितना बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे ही कई सारे मोबाइल एप्लीकेशन, कई सारे सॉफ्टवेयर्स, कई सारी डिवाइसेज आज के डेट में एक्सेसिबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन समस्या क्या है कि हमारे लोगों तक, हमारे जो बेनिफिशियरी हैं उन तक ये सारी सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही है, और नहीं पहुंच पा रही है तो लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। एक एग्जांपल फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी की बात मैं करूंगा। आज के डेट में एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन के लिए बैंक में अकाउंट खुलवाना और बैंकिंग फैसिलिटी को इंडिपेंडेंटली यूज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है। लेकिन जो हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है उसको अगर सही से यूज करें तो मैं ये मानता हूं कि किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं है। आज जगह जगह पर टॉकिंग एटीएम अवेलेबल हैं। एक विजुअली इंपेयर्ड इंडिपेंडेंटली टॉकिंग एटीएम का यूज करके बिना किसी के सहयोग से एटीएम से पैसे निकाल सकता है, अपना बैलेंस चेक कर सकता है, अपना पासबुक मशीन में जाके अपडेट कर सकता है, ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर सकता है। तो आज आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इस बात की है कि हम जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको अवेयर करें। प्रथम दृष्टया जब बैंक में अकाउंट खुलाने एक विजुअल इंपेयर्ड व्यक्ति जाता है तो बैंक के कर्मचारियों की पहली कोशिश ये होती है कि इसको इतने सारे समस्याओं में उलझा दो कि ये चला जाए वापस से, हमारे बैंक में अकाउंट ही ना खुलवाए। और किसी तरह से अकाउंट खुल भी गया तो उसको एटीएम प्रोवाइड करने में, उसको चेकबुक प्रोवाइड करने में, उसको इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए आज कंप्लेंट पोर्टल अवेलेबल है। कंप्लेंट पोर्टल पे आप कंप्लेंट करके और इन समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। हम समय समय पर हमारे सामने ऐसे केस आते हैं और हम उसका समाधान कराते हैं। मैं भी बैंकिंग फैसिलिटी को पूरी आत्मनिर्भरता के साथ बिना किसी के सहयोग से उपयोग कर रहा हूं और मेरे जैसे हजारों की संख्या में विजुअली इंपेयर्ड लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो लोग इन जो सेवाएं हैं इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ समय समय पर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, कई सारी शिकायतें मिलती हैं। तो ये इस प्रकार की जो सेवाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम
जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, डिसेबिलिटी कम्युनिटी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो हम फ्रंटलाइन वर्कर हैं, ये हमारा दायित्व है। इसी प्रकार से कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं, जैसे जगह जगह पर पब्लिक प्लेसेज में पहले तो टैक्टाइल पाथ या ब्रेल साइनेज अवेलेबल ही नहीं होते हैं, और कई जगह अवेलेबल होते भी हैं तो उनका सही तरीके से उपयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली मेट्रो की फैसिलिटी को ही ले ले। दिल्ली मेट्रो ने एक एक्सेसिबिलिटी का, एक एक्सेसिबल एनवायरनमेंट का, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश किया है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात ही है, मैं मेट्रो में मैं यात्रा कर रहा था और टैक्टाइल पाथ को फॉलो करते हुए मैं जा रहा था। मेरे साथ और 2 विजुअल इम्पेयर्ड फ्रेंड थे। तो टैक्टाइल पाथ को फॉलो करते हुए जाते हुए हम लोग टैक्टाइल पाथ के बीच में ही एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होर्डिंग लगा हुआ था, और हम आपसी बातचीत में भी थोड़ा सा व्यस्त थे। तो हम जाकर के उस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में टकरा गए और वो बोर्ड गिर गया। तो फिर हमने बहुत ही पोलाइटली वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको हम लोगों ने बताया कि भाई, एक तो आपने टैक्टाइल पाथ बना रखा है, बहुत अच्छी बात है, और ये टैक्टाइल पाथ एक विजुअली इम्पेयर्ड को रास्ता दिखाने के लिए है। तो विजुअली इम्पेयर्ड आत्मनिर्भरता के साथ इस टैक्टाइल पाथ का यूज करके आवागमन कर सके, इसके लिए है। तो आप इसमें ये होर्डिंग लगा देंगे, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा देंगे, तो फिर इस टैक्टाइल पाथ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। तो फिर उन्होंने फिर अपनी गलती का एहसास किया और भविष्य में इन बात का ध्यान रखने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया। तो ऐसी कई सारी समस्याएं आती है, हम उसको देखते हैं, उसको फील करते हैं, लेकिन फील करके फिर इग्नोर कर देते हैं। कई सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। आज एक नॉन डिसेबल व्यक्ति टूरिस्ट प्लेस को जिस प्रकार से जाता है, वहां घूमता है, एंजॉय करता है, क्या एक डिसेबल पर्सन की उनको अधिकार नहीं है कि वो भी टूरिस्ट प्लेस पर जाए और वो भी वहां पे एंजॉय करे? ये कैसे संभव है? ये संभव तभी हो पाएगा जब वहां हम एक्सेसिबिलिटी के जो फीचर हैं उसको डेवलप करें, वहां एक्सेसिबल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, वहां के जो एम्प्लॉय हैं उनको हम अवेयर करें कि एक डिसेबल हमारे यहाँ आता है तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये हम इंश्योर करें। ये जब तक सुनिश्चित नहीं हो पाएगा तब तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं जो ये अभियान चलाई जा रही है, उनके द्वारा जो एक्ट एंड पॉलिसीज डेवलप किए जा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पहुंच रही है। जी 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 बिल्कुल मैम, जी आवाज आ रही है मैम। अच्छा ठीक है मधुर हेलो। जी, मैं बहुत माफी चाहूंगी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। नहीं, समय नहीं, की कुछ बाध्यताएं हैं और राव सर भी हमारे साथ जी। ही हैं अभी तक जुड़े हुए, क्योंकि आप दोनों लोगों जी को जी कुछ जी सवाल भी लेने हो सकते हैं। तो क्या हम लोग जी 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 कंक्लूजन की तरफ मूव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी। तो मैं यही कर रहा था, मैं राव सर ने जो एक्ट्स एंड पॉलिसीज की जो बात है उन्होंने बहुत विस्तार से उन्होंने बताया था। तो मैं जो व्यवहारिक जो समस्याएं हैं उसकी ओर आप सबका ध्यान लाने की कोशिश कर रहा था, आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, और आगे भी हम समय समय पर इस विषय पर संवाद करते रहेंगे। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, सभी श्रोताओं से, कि हम जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको सही से हम पहले उससे अवेयर हों। हमारा पहला दायित्व तो यही होता है कि पहले हम अवेयर हों। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तो हम दूसरे को अवेयर नहीं कर सकते, और हम अवेयर हो जाए तो उसके बाद कहीं भी अनएक्सेसिबिलिटी की इशू हमारे सामने आती है तो उसको दूर करने के लिए हम अपने स्तर पर जो भी हमारा दायित्व है हम उसको निभाएं। हम चाहे वो सुगम्य भारत ऐप के माध्यम से उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाने का प्रयास करें, या वहां के लोकल अथॉरिटी से बातचीत करके वहां पर जो अनएक्सेसिबिलिटी का इशू है उसे दूर करने का प्रयास करें। ये हमारा दायित्व है। समय बहुत कम है,
विषय बहुत व्यापक है, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रही है, इसलिए फिलहाल मैं सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ। जी मैम। थैंक यू सो मच मंतोष जी। ये जो जी। वेबिनार हम देख रहे हैं कि केवीएस राव सर हमारे साथ थे, जिन्होंने पॉलिसी मेकिंग को लेकर के जो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो कार्य किए जा रहे हैं, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उनके बारे में हमें बताया। और साथ ही हम यहाँ देख रहे हैं कि वो सारे स्टेप्स एक हितग्राही तक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन जैसा कि मंतोष जी ने बताया कि उसमें कुछ व्यवहारिक परेशानियां हैं, साथ ही जागरूकता की कमी है। केवल उन लोगों में जागरूकता की कमी नहीं है जो जिनको ये चीजें या स्टेप्स लेने हैं, हितग्राहियों में भी जागरूकता की कमी है कि वो इस तरह की सर्विसेज या जो लाभ सरकार उन तक पहुंचाना चाह रही है वो उसको लेने के लिए आगे आए। तो ये दोनों ही दृष्टियों में बहुत ही अच्छे से हमारे दोनों वक्ताओं ने इस चीज को बताया है। मैं अपने स्टूडेंट से, अपनी फैकल्टी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल है राव सर से या मंतोष जी से, तो कृपया पूछें। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी डिस्क्रिप्टिव रहा है हमारा वेबिनार, और सर ने भी पीपीटी के माध्यम से बहुत सारे चीजें हमको बताई हैं। तब भी मैं फिर एक बार पूछ रही हूँ, क्या किसी के कोई सवाल है आप पूछना चाहते हैं? राव सर हमारे साथ में हैं, सर हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में हैं, मंतोष जी भी हमारे साथ में हैं। और आपने देखा कि व्यवहारिक तौर पर जब जमीनी स्तर पर ये चीजें जाती हैं, जो पॉलिसी मेकिंग में चीजें हैं या जो रूल्स बनाए जाते हैं, तो डेफिनेटली गैप होता है। और वो गैप हम इवन इस वेबिनार में भी, जैसा कि मंतोष जी बता रहे थे, कई जगह हम लोग देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से पॉलिसीज बनी, बट व्यवहारिकता में बहुत सारी चीजें नहीं आ पा रही है। तो क्या आप हमारे स्टूडेंट्स, हमारी फैकल्टीज और जो भी हमारे साथ पर्सन विद डिसेबिलिटी जुड़े हैं, उनको मैसेज कुछ देना चाहेंगे कि इसको हम अपने स्तर पर कैसे जो है इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं? इट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऐसा है, जब भी कानून बनता है तो कुछ कानून ऐसे होता है कि शेल्फ में रह जाता है, कानून हो जाता है लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। लेकिन ये कानून ऐसा है, जब से एनैक्ट हुआ है, नेक्स्ट दिन से ही सुप्रीम कोर्ट उसको नोटिस लिया है और बताया कि एक सुनंदा भंडारी केस में कि सभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया कि इस तरह ठीक से इम्प्लीमेंट करना है। मतलब पहले से ही सुप्रीम कोर्ट सभी को नोटिस दिया है कि इम्प्लीमेंट होने का। सो ये दूसरा जो कानून से ये अलग कानून है। और अभी भी ऐसा है कि सभी कोर्ट्स, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, बहुत सेंसिटिव है, बहुत सिंपैथेटिक है टू द व्यूज, टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और आप देखते हैं कि काफी जजमेंट्स इनका फेवर में वेरी डिटेल्ड में डायरेक्शन के साथ गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को जाता है। और कुछ जजेस ऐसा है काफी श्रद्धा लेते हैं जो भी इस तरह मुद्दा आता है उनके सामने। तो नॉट ओनली जुडिशरी बट लेजिस्लेचर, जो एमपीज भी काफी क्वेश्चन पूछते रहते हैं गवर्नमेंट को, आप लोग क्या कर रहे हैं, और मीडिया भी काफी एक्सपोज करते हैं क्या क्या डेफिशिएंसीज है। तो मैं सोचता हूँ कि देयर इज काफी स्कोप है इसमें इम्प्रूवमेंट होने का। और हम यही बताते हैं कि टाइम तो होता है, लेकिन सभी लोग जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हो, सभी लोग इस पे काम कर रहे हैं। बट ऐसा है काफी प्रोविजंस है अभी एक्ट में, काफी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है या बहुत स्लो हो रहा है। लाइक मैं एग्जांपल दूंगा, एक सेक्शन है उसमें लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी को फॉर्म करना है, जिसमें हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या और कोई अधिकारी और पुलिस सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर, सभी लोगों का कमिटी बनना है, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
उनको लोकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है, अपना लेवल पे क्या सॉल्व कर सकता है, और जो स्टेट लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ इसमें उनका इंटरवेंशन चाहिए, उनको लिखना चाहिए। इस तरह प्रोएक्टिव बनने का ये प्रोविजन है। मैं सोचता हूँ कि ये ज्यादा इस प्रोविजन को स्टेट गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंट करना शुरू नहीं किया है, तो ये करेंगे। और दूसरा प्रोविजंस काफी है, जो स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, इनके लिए धीरे धीरे हम सोचते हैं कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट से जब हर सेक्शन इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, तो हम सोचते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव जरूर फुलफिल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह आप कहा कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या करना है, ये ऐसे नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही करना है, प्राइवेट सेक्टर भी करना है, एनजीओ भी करना है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी हल्ला करना है, क्योंकि राइट्स इसके लिए सब लोग लड़ना है, क्योंकि जब भी लड़ेंगे तभी तो अधिकार मिलेगा। तो इंडिविजुअल्स जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो या विदाउट डिसेबिलिटीज हो, उनको इस अवेयरनेस बढ़ाते हुए और जो फैसिलिटीज जरूरी है, जब मुद्दे उठाएंगे और प्रेस करेंगे, जरूर सब उस फैसिलिटीज को आने का चांस है। जिस तरह अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स है, बहुत कम जगह अर्ली इंटरवेंशन है। जैसे सेक्रेटरी आज ही एक दूसरा मीटिंग में कहा है कि अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, क्योंकि जो गांव में कुछ प्रॉब्लम्स है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं है, और कोई नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट या कोई नेबरिंग स्टेट में है, उतना दूर जाने का चांस है ही नहीं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विलेज में इस तरह कुछ ना कुछ फैसिलिटीज होने से इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे या ग्रुप लेवल पे मुद्दा उठाएंगे और प्रेशर लगाएंगे अपना लोकल एमएलएज या एमपीज पे, जरूर ये फैसिलिटीज वहाँ पहुंचने का चांस है। नॉट ओनली रिहेबिलिटेशन बट ऑल्सो स्कूल्स, एजुकेशन फैसिलिटीज और जॉब्स भी जो रिजर्वेशन है, वहाँ भी रिजर्वेशन तो है ही है, लेकिन वो पूरी तरह 3% या 4% इम्प्लीमेंट सीट्स फिल नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, या ज्यादा लोग, कुछ लोग केपेबल नहीं है कुछ एरियाज में, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज नहीं है जो अप्लाई करने का। लेकिन इसमें ऐसा है, जितना इस बारे में लोगों को स्प्रेड करेंगे और आगे आएंगे तो आई एम श्योर ये इसका होने का चांस है ऑब्जेक्टिव्स। और एक चीज हम बताएंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे जब भी कुछ समस्या आए, जो अपना घर में हो या नेबर हो या कोई फ्रेंड के या रिश्तेदार के कुछ भी प्रॉब्लम्स है, वो सुनने के बाद उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए। लाइक हम एक दो एग्जांपल देंगे। जैसे किसी का, कुछ लोगों को तो पता नहीं कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, उससे क्या लाभ होता है, तो उनको बताना पड़ेगा कि आप वहां जाइए और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे आपको पेंशन या कोई रिजर्वेशन ऑफ जॉब ये सब मिलने का मौका है। इस तरह इंडिविजुअल लेवल पे सबको सेंसिटाइज करेंगे, मदद करेंगे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा एंड तक उनके साथ रह के उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर दैट इस तरह वी विल बी एबल टू implement the act at our individual level also। सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं छोड़ना है, कि हमारा हाथ में काफी करने का चांस है। और एक दो एग्जांपल दूंगा। रिसेंटली एक वेरी एजुकेटेड सीनियर लेवल ऑफिसर हमको फोन किया और बताया कि हमारा चाइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, और हमको पता नहीं कि इनको कौन सी 10th या 12th के बाद आगे कौन सी कोर्स इनसे करवाना है, कौन सी कोर्स में एडमिशन लेना है। तो उनको बहुत कंफ्यूजन था। इवन एजुकेटेड पर्सन्स, उनको पता नहीं था कि कहाँ जाना है, किस तरह असेस करना है, और करियर के लिए किस तरह किन से ओपिनियन लेना है। तो हम उनको बताया कि वो लखनऊ से है, हमको बताया कि वो CRC लखनऊ में जाके डायरेक्टर से मिले तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसी तरह एक और स्टूडेंट को मैं मिला हूँ जो कॉलेज स्टूडेंट है, छोटे वक्त में उनका राइट हैंड पूरी तरह एम्प्यूट हो चुका है। तो कॉलेज पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, तो हम वहाँ कुछ मीटिंग के लिए गए थे। वो बोल रहा कि हमारे लिए कुछ एड्स एंड अप्लायंसेस मिल सकता है, जैसे प्रोस्थेटिक ऐसा कुछ। तो मैं बोला उनको दिल्ली में है, तो उनको बोला IPH में जाके हॉस्पिटल से मिलने से तो कुछ ना कुछ उनका एग्जामिन करेंगे और कोई ना कोई रास्ता आने का चांस है। तो उनको IPH के बारे में पता नहीं है, तो अवेयरनेस
और awareness itself is a knowledge. Knowledge से they can go ahead and try to solve problem. तो अपना काम है अवेयरनेस क्रिएट करने से काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने का चांस है. दिस इज माय एडवाइस दैट इनफैक्ट हम एक कॉलेज में गए थे, वहां उनको बताया कि हर स्टूडेंट को बताया कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज उनसे दोस्ती करना है, ताकि वो पता हो जाए कि इनका क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उनको किस तरह अपन उनको मदद कर सकते हैं. सो इफ ईच ऑफ अस, नॉट ओनली स्टूडेंट, इफ ईच ऑफ अस कैन बिफ्रेंड वन पर्सन और उनको पूरी तरह मदद करेंगे, तो आई थिंक वी आर डूइंग लॉट ऑफ सर्विस to ourselves and to everybody. So thank you so much sir. आपने बहुत डिटेल वे में हमारे जो भी श्रोता हैं उनको आपने बताया है कि किस तरीके से जो है यूनाइटेड नेशंस UNCRPD से लेकर के और पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट तक एक्सेसिबिलिटी और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो बैरियर्स हैं एक्सेसिबिलिटी को लेकर या PWDs के लिए जो स्टिग्मा है उनको बारे में आपने बहुत डिटेल में बताया. मंतोष जी ने जो है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंतोष जी, कि व्यवहारिक समस्या विद डिसेबिलिटी केवल एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के तौर पर नहीं बल्कि एक रिसर्चर के तौर पर आपने एक उस पूरी पिक्चर को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है, जिसमें जहां हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं और जहां हम सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो एंड तक आते आते क्या क्या बैरियर्स उसमें जो है समस्याएं आती हैं, उनका एक बहुत ही वस्तुनिष्ठ तरीके से आप कहते हैं कि ऑब्जेक्टिवली और सब्जेक्टिवली दोनों तरीके से आपने हमारे सामने उसको रखने का कोशिश किया है कि कैसे वो समस्याएं आती हैं. सर ने कंक्लूजन में पूरी तरह से हमें बताया कि एक पर्सन के तौर पर हम कैसे एक सरकारी ऑफिसर के तौर पर, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के तौर पर और एक जागरूक नागरिक के तौर पर हम कैसे इन बैरियर्स से लड़ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच सर कि आपने जो है हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया. मंतोष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि एंड टाइम पर जो है हमारा बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमारा इनविटेशन उन्होंने एक्सेप्ट किया. सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस. मुझे पता है कि आप हमेशा जो है हेल्प करते रहते हैं डिसेबिलिटी की. मेरे पास भी आपके बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आते हैं किसी न किसी की मदद पहुंचाने के लिए किसी न किसी तरीके से. तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें मौका दिया और आपके साथ हम जुड़ पाए और आपकी बातों को सुन पाए. और थैंक यू सो मच. प्रगति कैन यू हियर मी? एक पॉइंट हम बताएंगे कि जिस तरह मंतोष कुमार से हम उनका बात सुना है, तो आई कैन कंक्लूड ही इज अ रोल मॉडल और वो हमसे कुछ कम नहीं है. और जिस तरह हम यू एंड आई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट किया है, लेकिन वो हमसे आगे बढ़ा है, अपन MPhil किया है लेकिन वो PhD तक पहुंचा है. और आई नो दैट यू आर आल्सो डूइंग बिल्कुल. मैं मंतोष जी से पर्सनली मिली हूं एंड आई रियली सैल्यूट हिम. Yeah, and second thing, even without seeing any text material, he was able to make a full presentation very logically and eloquently. So he is very and he's working with the disability field. He is very techno-friendly. And here I am able to and here to use to participate in the webinar, I am having difficulty to handle myself. I am taking help of Shabari Ghosh, but Mantok Kumar, he is handling everything himself. So वो हाँ और किसी से कम कैसा हो सकता है. So he is a real model, and if we give opportunity, I am sure all persons with disabilities can fare equally or even better than all of us. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Very right, sir. Model for us. So thank you so much both of you to being with us. And इसी के साथ हम लोग जो है आज का अपना जो कार्यक्रम है, ये वेबिनार है, उसकी समाप्ति की दिशा में बढ़ते हुए आप सबको एक बार अपने श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. तो थैंक यू सो मच ऑल. Thank you. Thank you.